Hi guys, hi students, welcome you all. This is Tirupati Paningrai, biology teacher. Got experience of more than 10 years, especially teaching NET students. I am very glad to deliver a lecture on different topics. Today I am going to discuss about a very good subtopic of class 12 chapter coming under sexual reproduction in flowering plant, a very important feature called double fertilization. Okay, you might have come across also this topic in from class 7 or 8 if you are a CBSE student or even ICSE student, but this topic is included in class 12 in the first chapter, that is sexual reproduction in flowering plant. So we are going to deliver all details, everything in brief about double fertilization. Okay, so what is double fertilization? So students, definitely I will be more comfortable if I speak English simultaneously, Hindi also. So this is a very important feature. This is a very important feature of angiospermic plant. ये एक सबसे खासियत है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, हम इस फीचर को पाएंगे. ओके, तो आपको पता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट किसको बोलते हैं? यस, एंजियोस्पर्मिक किसको बोलते हैं? जिसके पास सीड भी होता है, फ्लावर भी होता है, दोनों फीचर्स होंगे तो हम इसको एंजियोस्पर्मिक बोलते हैं. सो डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, हम इसमें डिटेल देखेंगे. क्या क्या है डबल मतलब क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डबल? मतलब 2 times fertilization event occurs. 2 times the fertilization events occurs. So that is what is double fertilization. So now we will see how this 2 time fertilization occurs. Okay, now let us start. The male gametophyte here is your pollen grain. Now female gametophyte is your embryo sac. Okay, this pollen grain by the process of gametogenesis produce two male gametes. Okay, pollen grains, generally pollen grain, how if we will go in deep inside, pollen grain will divide by mitosis to vegetative cell and generative cell by the process of mitosis. As we know, pollen grain is haploid in nature, will produce mitosis which are haploid in nature. This generative cell further divide by mitosis to produce 2 male gametes. So this is a source how these 2 gametes are produced. Now we will come to the female gametophyte embryo sac, which will produce by the process of again gametogenesis
7 cell 8 nucleus stage. 7 cell 8 nucleus stage, out of which 1 cell is called egg, which is haploid in nature. Embryo sac by the process of gametogenesis produce 7 cell 8 nucleus stage, in which one of the cell is your egg, okay, which is again haploid in nature. Okay, so these are the sources from where we get gametes. In case of male gametes, what is the source? In case of female gametes, what is the source? You know embryo sac, where it lies? Embryo sac lies in ovule of ovary. Where embryo sac lies? It lies inside the ovule of ovary, and of course gametes will be there in the pollen grain later on which forms pollen tube during pollination. Later on it will become pollen grain, will become pollen tube, pollen grain will become, okay, during pollination. These two male gamete present inside pollen tube set it at stigma of pistil or carpel, pistil or carpel. These two male gamete प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ट्यूब, सेट का मतलब क्या है? अपने आप जो उड़ के जाना पॉलिनेशन के माध्यम में, चाहे वो विंड हो या इंसेक्ट्स के थ्रू हो या वाटर, दीज आर द एजेंट्स विच हेल्प्स फॉर पॉलिनेशन. सो दीज टू मेल गैमेट प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ट्यूब सेट का मतलब उड़ के जाना या इंसेक्ट्स के थ्रू अपने लेग से जाना, इंसेक्ट के लेग से अटैच होके जाना, वो सारे को हम सेट बोलते हैं. ओके, तो एट स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल और कार्पल. ओके, so this is the stage of how pollination occurs. Once these male gametes through pollen tube reach the stigma of pistil, what happens next? So this is the structure of stigma, this is the structure of style, and this is the structure of ovary, this is the structure of ovule. This is stigma, this is style, this is ovary, this is ovule, this is the placenta. Once this pollen tube reach the stigma, enters near towards ovule, okay. So first what happens, remember, during pollination two male gamete present inside this pollen tube. See this pollen tube, this is the pollen tube having these two gametes, these are the two male gametes, okay, set at stigma. At early stage it will be setting its stigma, thereafter it will be developing the pollen tube to reach the ovule for the purpose of fertilization, ये आपको याद रखना है. क्लियर? तो अब क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा देखते हैं. फर्टिलाइजेशन में पहला क्या करना है हमको, पहला चीज हमको समझना क्या है. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन followed by second fertilization, ये फॉलो भी हो सकता है या साइमल्टेनियसली भी हो सकता है. फॉलोड बाय सेकेंड फर्टिलाइजेशन,
ये फॉलो मतलब एक के बाद दूसरा हो सकता है या साइमल्टेनियस भी हो सकता है, एट ए टाइम 2 फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो पहले फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, पहले फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सी one of the male gamete which is N in nature, माने haploid in nature, meets with egg which is again N in nature to form zygote which is 2N in nature. So this process of fusion with one of the male gamete with egg is forming zygote is called syngamy, is called syngamy. So first you have to remember, आपको ये याद रखना है, पहला गैमेट एग के साथ फ्यूज होगा, क्या बनेगा, जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी। ये पहला फर्टिलाइजेशन खत्म। नाउ कम सेकंड फर्टिलाइजेशन। सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सेकंड मेल गैमेट meets with ये पकड़ो आपका ओव्यूल है, ये पकड़ो आपका ओव्यूल है। ओव्यूल में ये एक रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस की ओपनिंग एंड मतलब एक ये 2 एंड होता है, ये बेस एंड बोलते हैं, इसको बेस एंड बोलते हैं, बेस एंड, जिसको चालाजा एंड बोलते हैं। ओके, ये बेस है और ये टॉप का रीजन। लेकिन जनरली एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है, ओव्यूल उल्टा रहता है, इन्वर्टेड रहता है, इसीलिए ये उनका मुंह समझ लीजिए, माउथ ऑफ द ओव्यूल, ये माउथ सोचिए, दिस इज ए माउथ, एम्ब्रियो सेक का माउथ, जिसको हम माइक्रोपील बोलते हैं। यहां पे न्यूक्लियस का यहां पे आपका एम्ब्रियो सेक होगा। दिस इज द रीजन वेयर एम्ब्रियो सेक लाइज। तो इधर आपका ये एक सेल, ये हो गया आपका एग, ये दोनों सेल हो गया आपका 2 सिनर्जिड्स, फाइन। और इधर और एक सेंटर में 2 सेल कंबाइंड रहेंगे, जिसको हम 2 पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम 2 पोलर न्यूक्लियस, जिसका क्रोमोसोम नंबर प्लॉइडी नंबर 2 है ना। और फिर बाद में ये इधर 3 सेल रहता है, जिसको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। ओके, पहला फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, पोलैंड ट्यूब इधर आके माइक्रोपील होके किसको फर्टिलाइज किया, एग को फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होगा, जाइगोट। क्या प्रोसेस में, सिनगेमी। दूसरा मेल गैमेट किसको फ्यूज होगा, दिस 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। किसके साथ फ्यूज होगा, मीट्स विथ 2 पोलर न्यूक्लियस। 2 polar nuclei is also called secondary nucleus, फाइन। तो ये 2 polar nuclei फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, टू फॉर्म PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फाइन। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। पहला फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब में रहता है, किसके साथ फ्यूज होगा, एग। वो कहां पे रहता है, एम्ब्रियो सेक, ओव्यूल का। देखिए ये अगर ओव्यूल है
ये आपका एम्ब्रियो सेक है, दिस टोटल इज योर एम्ब्रियो सेक, दिस टोटल इज योर एम्ब्रियो सेक। ओके, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। किस प्रोसेस में बनेगा? इस प्रोसेस का नाम क्या है? सिनगेमी। ओके, दूसरा फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? दूसरा मेल गैमेट मीट्स विथ टू पोलर न्यूक्लियस, देखिए सेंटर में ही है टू पोलर न्यूक्लियस जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके साथ फ्यूज होके क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जब पेन आया आउटपुट इसका, जैसे जाइगोट का क्या है? प्लॉइडी नंबर 2n है, वैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या होगा? प्लॉइडी नंबर बताओ। यस यस, बताओ बताओ। यस, इट इज 3n। हाउ? बिकॉज टू पोलर न्यूक्लियस का कितना है? 2n, और एक मेल गैमेट का कितना है? प्लॉइडी नंबर n, तो 2n + 1 सिंगल n इज कॉल्ड 3n। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्लॉइडी नंबर 3n है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा फाइनली जाकर? ये इससे हमको फायदा क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में? देखिए, ये जो जाइगोट बना ये आगे जाके क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ओके, एम्ब्रियो कहां पे रहता है? सीड के अंदर रहता है कि नहीं? इट रिमेन्स इनसाइड दी सीड। नाउ ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है? दीज आर रिच इन न्यूट्रिशन। प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसको आप एंडोस्पर्म बोलते हैं, ये क्या है? रिच इन प्रोटीनियस सब्सटेंस एल्बुमिन, रिच इन प्रोटीनियस सब्सटेंस एल्बुमिन। आप सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, इट इज हाईली कंटेंट ऑफ रिजर्व फूड। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसको रहना कहां पे? दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको आप पेन बोलते हो, दिस आर हाईली रिच इन न्यूट्रिशन, स्पेशली एल्बुमिन, स्पेशली प्रोटीन कॉल्ड एल्बुमिन। ये कहां पे जाकर रहेगा? सीड का एक्सटर्नल कोटिंग में रहेगा। सीड का एक्सटर्नल कोटिंग, जैसे आपको पता है सीड जो ऐसा होता है ये दो कोट से डेवलप होता है। एक है एक्सटर्नल कोट जो थोड़ा मोटा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। और अंदर एक सॉफ्ट कोट होता है जिसको हम बोलते हैं टेगमेन। ये सीड का दो पार्ट है, एक मोटा सा बहुत ही मोटा पार्ट टेस्टा वेरी स्ट्रांग होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम टेस्टा बोलते हैं, और इनर में एक सॉफ्ट लेयर रहता है जिसको हम टेगमेन बोलते हैं। ये जो पेन है ना, जिसको आप PN पेन, ये जो है किसका प्रोडक्ट है? किसका आउटपुट है? ट्रिपल फ्यूजन का, सेकंड फर्टिलाइजेशन का ये आउटपुट है, जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जाके कहां पे स्टे करेगा? इस जगह पे। दिस टेस्टा विल बी कवर्ड बाय दिस पेन। पेन कहां पे रहेगा? पूरा टेस्टा के ऊपर रह जाएगा, और इसका काम क्या रहेगा? सिंपली टू फीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये है आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को खाना देना पेन का काम है। पेन इज रिच इन एल्बुमिनस प्रोटीन, इट इज रिच इन प्रोटीन। ओके, इसीलिए वो एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के हिसाब से बिहेव करेगा। किस पर रहेगा? द आउटर लेयर ऑफ द सीड, जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। टेस्टा के ऊपर रह के किसको फीड करेगा? एम्ब्रियो को फीड करेगा। कब तक फीड करेगा? जब तक सीड जर्मिनेट होके पेड़ नहीं बनेगा, प्लांट नहीं बनेगा, न्यूबॉर्न प्लांट नहीं बनेगा, तब तक एम्ब्रियो को कौन खाना देगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्ड बाय ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? वन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ओके ओके, एतिडा। यस बच्चे, ये तो खत्म हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्लियर? फिर से थोड़ा रिव्यू कर ले क्या? छोटा सा क्रिस्पी रिव्यू। क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब? दो फर्टिलाइजेशन। ये किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। क्रिस्प में बता रहा हूं, जिस्ट में याद रखो। ये दो फर्टिलाइजेशन होता कैसे है? याद रखो, दो मेल गैमेट आपका पोलन ग्रेन डेवलप करता है। दो पोलन ग्रेन हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। मतलब द ऑर्गन विच डेवलप्स टू मेल गैमेट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। तो आपका मेल गैमेट, जो दो मेल गैमेट कौन डेवलप करता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन पहला क्या करता है? माइटोसिस की हेल्प से
दो सेल में पहले डिवाइड होता है, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। पोलन ग्रेन आपको याद रखना है, ये हैप्लॉइड है, ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। उसके बाद जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, ये दोनों भी हैप्लॉइड है, माइटोसिस से डेवलप किया हुआ है। उसके बाद आपका जो जेनरेटिव सेल है वो फिर से माइटोसिस से दो मेल गैमेट बनाएगा इनसाइड दी वेजिटेटिव सेल, जो बाद में जाकर वेजिटेटिव सेल बाद में जाकर ये बन जाएगा आपका पोलन ट्यूब। आपको इतना ही याद रखना है, जब भी पॉलिनेशन होगा, ये जो पोलन ट्यूब या 3 सेल स्टेज जिसको बोलते हैं, 2 मेल गैमेट प्लस वेजिटेटिव सेल, दिस इज कॉल्ड 3 सेल स्टेज। दिस 3 सेल स्टेज और इन 2 सेल स्टेज, कोई भी हो सकता है, 2 सेल स्टेज भी हो सकता है या 3 सेल स्टेज भी हो सकता है। पॉलिनेशन होने के बाद ये कहां पे टच करेगा, ये कहां पे गिरेगा जाकर, ये कहां पे सेट करेगा जाके आपका कहां पर, स्टिग्मा। यस, स्टिग्मा ऑफ क्या है, स्टिग्मा क्या है, किसका पार्ट है, आपका पिस्टिल कार्पेल जिसको बोलते हो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको आप गाइनोसियम बोलते हैं एज ए फैमिली, बट एज ए इंडिविजुअल यू स्पीक इट पिस्टिल और कार्पल। इसका 3 पार्ट है, आपका सबसे ऊपर वाला खुला पार्ट है जिसको आप स्टिग्मा बोलते हैं, एक ट्यूब जैसा लगा हुआ है उसको स्टाइल बोलते हैं, और एक ओवल स्ट्रक्चर है जिसको ओवरी बोलते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल रहता है। इतना आपको ऑलरेडी 11 क्लास में आपको अच्छे से पढ़े होंगे और आपको पता भी होगा। ओके, नाउ क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में या 3 सेल स्टेज में अगर गिरा होगा स्टिग्मा के पास, वो डेवलप करेगा एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जिसको आप पोलन ट्यूब बोलते हैं। ये कब करेगा, जब पिस्टिल पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ ये सही बंदा है और इसको मैं अलाउ करूंगा फर्टिलाइजेशन के लिए, जिसको आप पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हो, वो हम बाद में दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि ये पोलन ग्रेन जो गिरा है स्टिग्मा के ऊपर, ये पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। पोलन ट्यूब में 2 गैमेट्स है, क्योंकि दो मेल गैमेट हो या आपका एग हो, ये सारे के सारे नॉन मोटाइल गैमेट्स है। नॉन मोटाइल मतलब, हाँ बच्चों गेस करो किसको मोटाइल बोलते हैं, जो अपने हाथ पैर से घूम नहीं सकता, तो ये अपने आप नहीं घूम सकता, तो ये पोलन ट्यूब में होके ओवरी के पास, ओव्यूल के पास जाएगा, और ओव्यूल का माइक्रोपिल, उसका जो माउथ एंड है उसके थ्रू एंटर करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये हो गया आपका मेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। कहां से एम्ब्रियोसेक रहेगा, ओव्यूल, आपको मैं दिखाया हूं ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक रहेगा। वो फिर सेल डिवीजन करके क्या स्टेज बनाएगा, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज बनाएगा, जिसमें एक सेल का नाम है एग, जो कि माइक्रोपिल एंड में रहेगा, ओव्यूल का माइक्रोपिल एंड में रहेगा। और दूसरा एक स्ट्रक्चर है जिसको आप 2 पोलर न्यूक्लियस बोल रहे हो या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल रहे हो, जिसका प्लॉइडी नंबर 2 है ना, वो सेंटर में रहेगा, एम्ब्रियोसेक की सेंटर में रहेगा। एम्ब्रियोसेक को हम क्यों बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, बिकॉज इट डेवलप्स फीमेल गैमेट एग। इतना आपको याद रखना है। खत्म। अब फ्यूज होगा पहला मेल गैमेट किसके साथ, एग के साथ, क्या बनेगा, जाइगोट। इस प्रोसेस का नाम क्या है, सिनगेमी। इसका आउटपुट जो जाइगोट बना आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो। कहां पे जाके रहेगा, सीड के अंदर। इतना याद रखना। खत्म। उसके बाद सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, 2 पोलर न्यूक्लियस, क्या बनेगा, पेन बनेगा। पेन का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और दिस पेन का प्लॉइडी नंबर क्या है, 3n, दैट इज ट्रिप्लॉइडी। 3n मतलब ट्रिप्लॉइडी। जैसे सिंगल n को हैप्लॉइड बोलते हैं, 2n को डिप्लॉइड बोलते हैं, 3n को ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। ओके, तो पेन का क्रोमोसोम नंबर या प्लॉइडी नंबर क्या है, 3n, आपको याद रखना है। ये कहां पे जाके फाइनली रहेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में रहेगा, सीड का ऊपर वाला कोटिंग में रहेगा, जिसको आप टेगमेन बोलते हैं, ऊपर वाला कोटिंग में रहेगा। और इसका मुख्य काम क्या है, इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, टू फीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो टिल इट डेवलप्स टू प्लांट। इतना ही है, आपको जिस्ट में याद रखना है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। और ये यूनिक फीचर फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, डायबिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। डायबिटीज के बारे में हम लोग को बहुत सारे मिथ डेवलप कर दिए हैं,
तो घर घर में आज के डेट में डायबिटीज़ कॉमन, जैसे फ्लू जैसा बीमारी हो गया, कॉमन कोल्ड फ्लू जैसा है, एक लाइफस्टाइल बीमारी है, उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफिंग में बात करेंगे, जो कि 11th क्लास में आपका है। ओके, एक चैप्टर है जो लास्ट वाला चैप्टर है, उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं या केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। उस चैप्टर में आप पाएंगे ऑल अबाउट डायबिटीज mellitus, and another diabetes is also called diabetes insipidus. So there is a great difference between them, and lot of myth are found what is diabetes insipidus and what is diabetes mellitus, क्योंकि इन दोनों में बहुत सारी कॉमन सिम्टम्स भी है और बहुत सारे अनकॉमन सिम्टम्स भी, जो कि अलग है। दोनों ही चीज अलग है, दोनों होने का बीमारी का कारण भी अलग है और दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है और दोनों का जगह भी अलग है, अफेक्टेड ऑर्गन भी अलग है, लेकिन बहुत सारे उनका सिम्टम्स कॉमन है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऑल अबाउट डायबिटीज। ओके, गुड डे। आई होप यू ऑल फाइंड दिस टॉपिक वेरी यूजफुल टू यू, और अच्छे से सरल वे से इसको हमने समझाया है और आपको सबको समझ में आया ही होगा। ओके, गुड डे।